گری ہلدن ولاگز میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو. میں اس وقت پرتگال کے شہر لزبن میں ایک بہت ہی خوبصورت پرفضا مقام پہ ایک بوٹینیکل گارڈن میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہاں ہم نے میں کوئی پلان کر کے نہیں آیا تھا. ہم اسپونٹینیسلی اپنا ایک ورکشاپ تھا، اس ورکشاپ سے نکل کے واک کرتے ہوئے جب ہمیں یہ بوٹینیکل گارڈن نظر آیا تو اس کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں. اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کے ہمیں فوراً گلگت بلتستان میں چنار باغ کا علاقہ ہمیں فوراً نظر آیا، اور تھوڑا پچھلے وقتوں میں چلے جائیں تو خومر کا ایریا، وہاں پہ اس طرح کے وائبس ہوتے تھے. تو میرے ساتھ آج بائی چانس ہمارے ہنزہ کے معروف مشہور شخصیت عبید اللہ صاحب ہے، کرنل عبید اللہ ریٹائرڈ، اور یہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے یورپ کی طرف آئے ہوئے ہیں. تو اس میں ان کے کچھ پروفیشنل انگیجمنٹس بھی تھے، تو ہماری ملاقات یہاں پرتگال لزبن میں ہوئی ہے. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جان کے یہ کوشش کی ہے کہ عبید اللہ صاحب سے تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہم اس چیز پہ گپ شپ کریں گے کہ ہمارے علاقوں میں آج کل جو حالیہ سیلاب وغیرہ ان کی وجہ سے جو تباہ کاری ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں. اور پھر ہم یہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں اس طرح کے ڈیزاسٹرز کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ایکو ٹورزم یا جو سسٹینیبل ٹورزم ہے، یا جو پریزرویشن آف کلچر ہیریٹیج، اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز آج کل یوز ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم گلگت بلتستان میں فیوچر میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کرنٹلی کیا کیا ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو اپنے سر سے انٹروڈیوس کراتا ہوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سر بڑی خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی ہے ادھر پرتگال میں، اور اس بوٹینیکل گارڈن میں بیٹھ کے آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ محترم احمد صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لکیلی ہم ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس سب کے لیے سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کا ایک اچھا موقع دے دیا دنیا دیکھنے کا، بچوں سے ملنے کا، اور پھر ادھر سے ہم ایک اچھا سبق لے کے اپنے علاقے میں جائیں. اور جو ویسٹ میں آلدو کہ ادھر اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں لوگ، مگر اسلام کی جو جینون روح ہے وہ آپ کو ادھر نظر آئے گی. بالکل صحیح. چاہے وہ حق حاکمیت کی بات ہو، یا آئین کی بات ہو، یا حقوق کی بات ہو، کلچر کی بات ہو، اور جس طرح آپ نے بتایا بوٹینیکل گارڈن میں سسٹینیبل ٹوریزم کو، درخت بھی یہ بھی جاندار ہیں، بالکل. پودے بھی جاندار ہیں. بالکل. تو ان کو انہوں نے کیسے پریزرو کیا، یہ ہمیں بہت بڑا ایک میسیج دیتا ہے. تاہم ہماری دل و جان کے ساتھ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ جو ہمارے پاس گلگت بلتستان دیکھنے کے لیے ڈاؤن سے لوگ آ کے بابو سر ٹاپ پہ اچانک سے موسم کی خرابی اور کلاؤڈ بسٹنگ کے نتیجے میں 15 سے زیادہ لوگ لاپتہ اور 4-5 لوگوں کی ڈیتھس ہو گئیں، اس کے لیے ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ تہ دل سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت یابی کی اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں. مگر یہ سب کیا ہے کہیں تو میرے اندازے میں شاہ صاحب آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ہمارے حکمرانوں کی حکومت جس طرح وہ اللہ کے حکم کو مانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں. پھر آن دی ادر ہینڈ آئین بناتے ہیں، آئین پہ عمل نہیں کرتے، ہار جاتے ہیں مگر ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو جیت جاتے ہیں ان کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان پہ چاہے وہ کلاؤڈ بسٹنگ کی صورت میں ہو، یا اس طرح غیر ذمہ دار حکمرانوں کی حکمرانیت کا جو عذاب 24 کروڑ عوام جھیل رہے ہیں، اس سب کے لیے ہمیں سچی بات ہے کہ دوبارہ سے ہمیں اللہ کے کتاب کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف، اور جو ہمارے پاکستان کے ہمارے اکابرین نے حق مسلمانیت کو فعال بنانے کے لیے اپنے عقیدے کے حساب سے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، ان بنیادوں پہ جا کے ہم
آگے چلیں گے تو اللہ بھی ہم پہ مہربان ہوگا. آج دیکھ لیں ہم لسبن آئے تھے تو ادھر بوٹینیکل گارڈن میں انہوں نے کسی ایک درخت کو بھی چھیڑا نہیں ہے. اگر گرا بھی ہے تو اس کو بھی ایک خوبصورت انداز میں رکھا ہے. اور ادھر اندر آنے کے لیے انہوں نے ٹکٹ رکھا ہوا ہے. پھر ٹکٹ پہ لوگوں کو نوکری دی ہوئی ہے اور اسی کی آمدنی سے اس پورے گارڈن کو، چاہے پانی ہے، درخت ہے، ادھر پرندے ہیں، مچھلی ہے، ان سب کو انہوں نے ایک اچھے انداز میں کیا ہوا ہے. ویریز اگر میں سینٹرل گلگت کی بات کروں، KIU کے عزیز علی نجم وی سی صاحب نے یونیورسٹی کے سلوپ پہ اتنے اچھے درخت لگائے تھے، ان کو تقریباً بلوغت تک پہنچایا تھا اپنی ہی اس شارٹ ٹینور میں. مگر آج دیکھ لیں تو وہ درخت پانی کے لیے ترس رہے ہیں. پھر کلاؤڈ بسٹنگ نہیں تو کیا ہوگی؟ اللہ کو بھی ان پہ ترس آیا ہوگا، تب جا کے یہ بارشیں ہوتی ہیں. اور اس طرح درختوں کو انہوں نے سسٹین کر لینا ہے. تو ہم اپنی سیاحت کو بڑھانے کے لیے، ہم اپنے کلچر کو بڑھانے کے لیے، سسٹین رکھنے کے لیے اور ہمارے کسٹمز کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سول سوسائٹیز کو آگے آنا ہوگا. اور جہاں گورنمنٹ سستی کرتی ہے، جہاں ٹورزم منسٹری سستی کرتی ہے، جہاں پالیسی میکرز، اسمبلی میں تو میری طرح 32 آدمی ہیں، ایک کو تو انہوں نے نااہل قرار دیا ہے. مگر ہم 32 لوگوں کی سستی کا نتیجہ یہ ہے کہ بیوروکریٹ جو کہ ہمارے پبلک سرونٹس ہیں وہ ہمارے سروں پہ سوار ہیں. تو ہم نے، گورنمنٹ نے ان کو پالیسی دینی ہے، گورنمنٹ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے ان بیوروکریٹس کے ذریعے. وہ پبلک سرونٹس ہیں تو ہم ان سے کام لینے کی بجائے ہم ان کے تابع ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ سسٹم خراب ہوا ہے. تو میری سول سوسائٹی سے یہی گزارش ہوگی کہ آئندہ کے الیکشنز میں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو حق حکمرانی کرنا جانتے ہوں، نہ کہ حق حکمرانی اور حاکمیت کے نام پہ جنہوں نے اپنا نعرہ ہی چینج کیا، روٹی کپڑا اور مکان تھا. ابھی اس طرح کے لارے لپے لگا کے اور انہوں نے لینڈ ریفارمز پاس کیا ہے. اور اللہ نے ہمیں جن علاقوں میں پیدا کیا ہے تو اس کی حکمرانی ہمیں دی ہے، ہمیں بنایا ہے. مگر ہم کالونیل غلامی کے انداز میں غلامانہ لینڈ ریفارمز لائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی. ان کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے اور اس میں درستگی لانے کی ضرورت ہے. اور پھر ہمارے جو معدنیات ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں، اللہ نے جو خزانے رکھے ہیں پہاڑوں میں، زمین کے نیچے، پہاڑوں کے درمیان، ان کے لیے ہمیں رولز، ریگولیشنز اور ایکٹ ایسا لانا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے لوگ اس کے مالک بنیں، نہ کہ باہر کے لوگ آ کے، نہ کہ ریٹائرڈ جو ہیں نا بیوروکریٹس، چاہے کسی نسل کے بھی ہوں، آ کے. ہمارے پاس تو بہت ہی کم زمینیں ہیں مگر یہ ایکڑوں میں زمینیں خریدتے ہیں. اور کل کا ہمارا ایکو سسٹم انہوں نے خراب کرنا ہے، چاہے ایک ہمارا غزر ہو، بلتستان ہو، ہنزا ہو، نگر ہو، ان میں ہم نے ان کو گھسنے نہیں دینا ہے. یہ پہلے ہی گرین ٹورزم کے نام پہ آ کے انہوں نے ہمیں خراب کیا. ہماری کاٹیج انڈسٹری، ہماری کاٹیج ٹورزم کو یہ خراب کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، ان میں یہ بڑے بڑے ہوٹلز بنا کے یہ جو ہے نا مافیاز بنا رہے ہیں. میں نے اسمبلی میں بھی چیخا ہے. میں اس میسیج کے تھرو بھی دوبارہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس گرین ٹورزم کو، لینڈ ریفارم کو لایا ہے، ان کو یکسر الیکشن میں کھڑا ہونے ہی نہیں دینا ہے، نہ ان کے جلسوں میں جانا ہے، نہ ان کو کاغذات جمع کرانے دینے ہیں. انہوں نے گلگت بلتستان کا سسٹم ہی خراب کیا ہے. پلیز ذمہ دار لوگوں کو، پلیز باشعور لوگوں کو آپ آگے لائیں. مگر آج دیکھ لیں کہ یہ تو پاکستان میں اللہ کی حکمرانی تو کہتے ہیں، مگر یہ دیکھا جائے تو سچی بات ہے کہ کہنے کی حد تک تو بولتے ہیں مگر عمل کا وقت آتا ہے تو نادارد. تو یہ کسی اور کے ورلڈ آرڈر کے کھاتوں میں کسی اور کی یہ راگ الاپ رہے ہیں، کسی اور کی، اللہ کے کسی مخلوق کی جس نے دنیا میں گندگی کی ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے آرڈروں پہ چل رہے ہیں. اور
पाकिस्तान जिनको वोट देना चाहता है, जिनको वोट दे देते हैं, उनको ये आने नहीं देते असेंबलियों में, चाहे जो भी पार्टी हो। मगर आप ज़िम्मेदार लोगों को आगे लाएं ताकि पाकिस्तान जिस तरह हमारे लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, फिर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। 78 सालों से हम पाकिस्तानी बनने की कोशिश में हैं। अभी तक हमें आईन के हिसाब से न तो नेशनल असेंबली में जगह दे रहे हैं, न सेनेट में हमें जगह दे रहे हैं। तो ये तो आलम में, मगर हमसे बढ़ के कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता। हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानें दी हैं, अपनी औलादें कुर्बान की हैं, और मैं ख़ुद भी एक रिटायर्ड ज़रूर सोल्जर हूँ, मगर पाकिस्तानी बनने के लिए, पाकिस्तान की असेंबली में जाने के लिए, अगर आज हम नहीं तो कल हमारी औलाद ने जाना ही जाना है। और पाकिस्तान को जिन नाआकिबत अंदेशों ने ख़राब किया है, हमने पाकिस्तान को दोबारा से पाकिस्तान बनाना है। इसको इन्होंने खराबिस्तान की तरफ ले जाया गया है, जो कि हम तस्लीम नहीं करते। ठीक है सर। आप इसमें, मैं और आप जब यहाँ चल रहे थे तो दोबारा वो इको टूरिज़म की तरफ आपको लाता हूँ। उसमें हमने यहाँ ये चीज़ देखा कि इसमें जितने भी दरख्त हैं, ज़्यादातर दरख्त ऐसे हैं जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी आम पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको बढ़ने नहीं देते हैं। या तो फायर वुड के तौर पे हम उनको काटते हैं, या बिला वजह भी रास्ते में कोई दरख्त है तो हम उसको काट के उधर कोई बेकार सा कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, ब्लॉक्स का या पत्थरों का, या फिर ये करते हैं कि बस एक तरह से डिस्ट्रक्शन ही करते हैं हम। तो इसमें जो मिसाल मैंने शुरू में दिया था कि जैसे चिनार बाग था, किसी ज़माने में 80s में जब हम चिनार बाग जाते थे तो एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ील होता था। अंदर इतने बड़े बड़े दरख्त थे, चिनार के दरख्त थे, उनके नीचे छोटे छोटे होटल्स थे, और टूरिस्ट जब आते थे तो वो वहाँ इंजॉय करते थे। अब चिनार बाग से गुज़रते हुए मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए मेरा दिल नहीं करता है, इतना उसको बिगाड़ दिया। इसी तरह जुटियाल का इलाका, इसी तरह दनियोर का इलाका। तो इन जगहों को दोबारा रिस्टोर करना और उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको रिस्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जनाब, आपने बहुत ही अच्छी, हमारी हिस्टोरिकल जगह चिनार बाग है, जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के आज़ादी के हीरोज़, एक साइड पे 2 हमारे हीरोज़ हैं तो दूसरी साइड पे 3 हीरोज़ की कब्रें उधर बनी हुई है, और सेंटर में मोनूमेंट, जो कि 60s में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने, सदर पाकिस्तान जो उस वक्त थे, उन्होंने उसका इनागोरेट किया था। मगर एक हमारे नाआकिबत अंदेश सीएम ने कुछ करोड़ों का फ़ायदा किसी अपने अजीज़ को पहुंचाने के लिए उसको तोड़ मरोड़ के उस हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट का ताया पांचा किया है, और उधर उनके जाली फ़ोटोज़ लगा के हमारे उन हीरोज़ की शक्लें तक मसख की हुई हैं। अगर चिनार बाग की नहीं, हमारे हीरोज़ की भी शक्लें मसख की हुई हैं। इस पे मैंने उस वक्त के जो ज़िम्मेदारान थे, अस्करी क़यादत से भी मैंने कोशिश की, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड, दरख्तों की तरफ जाएं तो चिनार के दरख्त थे, चिनार के दरख्तों को काट के उधर पीडब्ल्यूडी ने रेस्ट हाउस बनाया। ऑन दी अदर हैंड, एक सीएम ने शुरू के मेहदी शाह था या हाफिज़ थे, आई डोंट नो, एक ने अपना सीएम ऑफिस बना लिया। फिर वो तो छोड़ें, फिर अभी के सीएम साहब ने कार पार्क बनाने के लिए दरख्तों को काट के, चिनार के दरख्तों को, जो कि अंग्रेज़ों ने किसी एक पॉलिटिकल एजेंट के बारे में मशहूर है कि वो बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था, तो कोई 2 महीने तक एक चिनार के साये में बग़ैर दवाई के जब रहा तो वो बिल्कुल ही सेहतमंद हुआ, ऑर्गेनिक फूड खा के। उसके बाद उसने ऑर्डर पास किया था कि गिलगित में कोई चिनार का दरख्त नहीं काटेगा। मगर ऑन दी अदर हैंड, आप चिनार बाग से देख लें तो चिनार के दरख्त उधर से गायब हो गए, सरकारी अफसरों के घरों में फर्नीचर बने, उनके पलंग बन गए। NLI का जो गिलगित स्काउट का ग्राउंड था, जो नादरन स्काउट का ग्राउंड था, उधर से चिनार के दरख्त काट के इन्होंने प्लाजे बनाए शोहदा ट्रस्ट के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड फिर देख लें तो रेस्ट हाउस का एरिया जहाँ बादाम बाग मशहूर था, उधर खाली बादाम अंग्रेज़ों ने लगाए थे, शाही पोलो ग्राउंड के बिल्कुल सामने, जहाँ PWD ने रेस्ट हाउस बना के एक बादाम का दरख्त रहने नहीं दिया। फिर ऊपर फतेह बाग का
बाग था, उधर इसी तरह दरख्त अंग्रेज़ों ने लगाए थे। इन सब से इन्होंने सिर्फ सरकारी अफसर जो 2-2 3-3 साल के लिए डाउन से तो आते हैं, मगर इधर से दरख्त काट के एक तरफ, जब चिनार के दरख्त ख़त्म हो गए तो ये फिर दियामीर की तरफ गए हैं। दियामीर के जंगलात को ये नहीं बख्श रहे हैं। दियामर बादशाह डैम और दासू डैम बन रहा है, उधर जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं उनके डंपरों में दियामर से लकड़ी डाउन की तरफ जा रहा है। कोई एजेंसियां हमारी सारी बैठी हुई हैं, चाहे सिविल हों, चाहे FIA की फेडरल की हों, चाहे जहाँ की भी हों, मगर वो सारे इसमें बराबर के इन्वॉल्व हैं। तो वो एक एक डंपर, 2-2 डंपर, 2-2 कंटेनर्स में बाहर से ये जो है ना क्या कहते हैं TIR का सामान होता है, वापसी में खाली जाते हैं तो दियामर का टिम्बर जाता है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हीं लकड़ियों से इनका कब्र में अल्लाह मियाँ आग सुलगा के इनको जला के कबाब ज़रूर कर देगा, ये मेरा ईमान है। और बाकी रही गिलगित बल्तिस्तान में हम कर क्या सकते हैं अभी, इसको कैसे रिवाइव करें? अभी इन्होंने जानबूझ के FC को इम्प्लाई किया है गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा, चाहे उधर का हमारा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर फेर का जो वज़ीर है या जो ज़िम्मेदारान हैं, प्लीज़ खुदारा इन FC को गिलगित बल्तिस्तान से निकाल दें। ये 2 तरह की लानतें वाला काम कर रहे हैं। एक हथियार और मंशियात का कारोबार करते हैं ये वर्दी के उसमें, दूसरा उधर से लकड़ी ये इस तरह का स्मगल करते हैं। फॉरेस्ट के अफसरों को भी, फॉरेस्ट के सेक्रेटरीज तक, DFOs, कंजर्वेटर्स, ये भी FC के सामने बिल्कुल ही माजूर हो गए हैं। तो इनको ज़िम्मेदारी के साथ ज़िम्मेदार अफसरों से ओथ लेके इनकी ज़िम्मेदारी दी जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं। अगर ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं, कुरान पाक पे यकीन रखते हैं, नबी आखिर ज़मान पे यकीन रखते हैं, और हमारा अक़ीदा है कि क़यामत के दिन हशर में हिसाब किताब होगा। अगर ऐसे लोग आएंगे तो इंशाल्लाह हम ना हमारा इकोसिस्टम ख़राब होना है, ना हमारा इको टूरिज़म ख़राब होनी है, ना हमारे जंगलात ख़राब होने हैं, ना जो है ना हमारी यूथ ख़राब होनी है। अगर आज यूथ ख़राब हो रही है तो तालीम तो दे रहे हैं मगर अमल नहीं सिखा रहे हैं। एक्चुअल तो अमल होनी चाहिए कि किरदार साजी पे कोई काम, ना मौलवी किरदार साजी पे काम कर रहा है, ना पेरेंट्स कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट कर रही है। ये ज़रूर प्रोग्राम्स दे देते हैं बड़े बड़े लोगोज़ के साथ, बड़े बड़े स्लोगन्स के साथ, मगर जब ईमानदारी की बात आती है, खुलूस की बात आती है, ज़िम्मेदारी की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, तो सच्ची बात है कि नाम के मुसलमान हैं, काम के फेल के मुसलमान नहीं रहे हैं अभी। तो सर ये जो गवर्नमेंट के तो कोताहियाँ बहुत आया हैं, ये सबको पता है ज़्यादातर। मैं अगर उससे हट के बात करूं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ये NGOs के थ्रू भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे इलाक़ों में, वाटर सप्लाई के नाम से, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के नाम से, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से कई चीज़ें आती हैं। वो आके गिलगित में या हुंज़ा में या इस्लामाबाद में होटलों में बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े इवेंट्स करके चले जाते हैं, लाखों रुपए उस पे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसका कोई इम्पेक्ट हमें नज़र नहीं आता। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब आएँ तो वो पैसा जितना होता है वो लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ मिल के वो पैसा रियली किसी पार्क बनाने में ख़र्च हो, कोई फुटबॉल का ग्राउंड बनाने में ख़र्च हो, कोई स्विमिंग पूल बनाने में ख़र्च हो, कोई खूबसूरत सा दरिया का किनारा बनाने में ख़र्च हो, कोई जैसे अभी हम पुर्तगाल में घूमते हैं तो ये जो गलियाँ इनकी देख के हम नेचुरल आम पत्थरों से इन्होंने बनाई हुई है, उसमें कोई ऐसा बड़ा साइंस नहीं है। तो इस तरह के काम हम क्यों नहीं कर पाते हैं, और अगर करना है तो कैसे हम इसको इनिशिएट करके लोगों को इस पे मजबूर कर सकते हैं कि हम ख़ुद भी अपने हाथों से बहुत सारा तब्दीली हम ला सकते हैं। मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपकी तवस्सुत से इस दफ़ा की असेंबली की ओवर एंड अबाउट दी सैंक्शन बजट जो पिछले 2024-2025 में बजट पास किया था, उससे ओवर एंड अबाउट
39 अरब 44 करोड़ सम लेक्स का ओवर एंड अबव इन्होंने एक्सपेंसेस की सेंक्शन दी है। वो किसने दी है? इन नालायक हुकूमती बेंचेस पे बैठने वाले चीफ मिनिस्टर से लेके वज़ीर मालियात से लेके जिन्होंने उसमें हाँ में हाँ मिलाया, कुछ लोगों की चोरी और करप्शन को छुपाने के लिए इतने बड़े फोरम से इन्होंने ओवर एंड अबव 39 अरब 44 करोड़ की सेंक्शन दी है। मैं इन बेज़मीर बेइख्तियार मेंबरों से ज़रूर पूछने में मैं हक़ बेजानिब हूँ। हम अपोजिशन के 10 मेंबरों ने इस पे ऑब्जेक्ट किया कि ये लोग क्यों इस तरह इस ओवर एंड अबव ओवर ड्राफ्ट को ये सेंक्शन दे रहे हैं, मगर हंसते हुए उन्होंने हमें टाला और ये पास किया। अगर ये इतना पैसा 3 डिवीज़न्स में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ईमानदारी से खर्च किया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में एक एक पार्क इसी तरह का सस्टेनेबल टूरिज़म के साथ बन सकता था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बन सकता था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा हॉस्पिटल बन सकता था, मगर इन लोगों ने इतनी ज़्यादती की है कि इनसे न इदारे पूछते हैं, न इदारों पे मुसल्लत जो बड़े लोग हैं, न इनसे उस चीज़ की सरजनिश पूछते हैं। और इस तरह के इदारे इन्होंने बनाए। हुकूमत पाकिस्तान तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट इनको दे रही है, मगर जो है ना न FIA इसमें कोई काम कर रहा है, न CM की इंस्पेक्शन टीम कुछ करती है, न एंटी करप्शन कुछ करती है। अखबारों की बयानात की हद तक तो ये सब कुछ करते हैं। और बदउनवानी के इंक्वायरीज़ को भी जब ये मना कर दें, ऐसी काबीना एक एक क्या कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की पोस्टिंग के लिए CM को खुद अपना आर्डर निकालना हो, तो आप वहीं पे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि हमारे सिविल सोसाइटी के लोग आगे आ जाएं, इनको अपना चेहरा दिखाएं कि यार आप लोगों ने ये जो है ना शीशा गंदा नहीं है, इनके चेहरे गंदे हैं, इन्होंने जिस तरह इतना गंदा काम किया है, गलीज़ काम किया है। और ऑन द अदर हैंड ये जो है ना हमारे इलाकों में गंदम उगाने के लिए या दरख्त उगाने के लिए, फसलें उगाने के लिए, फल उगाने के लिए अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है, मगर हमारे बेज़मीर बड़ों ने गंदम की खुर्द बुर्द के लिए, आटे की खुर्द बुर्द के लिए 20 अरब रुपए एलोकेट कराए हैं। और फिर इससे सब्सिडी के साथ जो पैसा वापस आता है वो कोई 4 अरब के करीब है। तो 24 अरब की सब्सिडी सिर्फ हम GB में खाएं, हम अपनी ज़मीनों को, पानी को हम इस्तेमाल ना करें, अपने लोगों को हम आराम और काहिली का नशा का टीका दे दें, तो सच्ची बात है कि ये जुल्म वाली बात है। ऑन दी अदर हैंड फिर चाइना के साथ हमारा जो कारोबार है इसको भी हमें ठीक करने की भी ज़रूरत है। चाइनीज़ कहते हैं कि आप चाहे प्रॉपर बिजनेस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, मगर उधर यही इन्हीं कुछ लोगों की सरपरस्ती में स्मगलर्स और माफियाज काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को बनाने के लिए पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं कि ये कैरियर के खाते में और TIR के खाते में हमारा KKH इस तरह इस्तेमाल हो रहा है, मगर उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। ये कैसे लोग हैं? गिलगित एयरपोर्ट का मुआवजा दिया नहीं है आज तक। 78 सालों से लोग दर बदर हैं, तीसरी चौथी जनरेशन 14 दफ़ा अदालतों से अपने लिए फ़ैसला लेके आए हैं, मगर एक एक इधर ब्यूरोक्रेट, चाहे वो अदालती हो या सिविल ब्यूरोक्रेट हो या जो भी हो, 500-600 अरब के जो है ना वो इस तरह के बड़े बड़े करप्शन में इन्वॉल्व हैं, मगर उधर 4 अरब या 5 अरब का कंपनसेशन देने के लिए इनको तकलीफ़ होती है। तो फिर हम बोले नहीं तो फिर क्या करें? बिल्कुल ठीक सर। तो NGOs के रोल के बारे में मैं आपसे हाँ, NGOs की मैं देख लें कि आप पूछ रहे थे, तो NGOs ने गिलगित बल्तिस्तान में अगर AKF नहीं आती, AKRSP नहीं आती, तो लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का, पैसों की बचत की, इस तरह की तंजीमें बनाने का, फिर
एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, फ्रूट आर्चर्ड से रिलेटेड, और फ्रूट्स को सुखाने के तरीक़ों से लेके ये सारी चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान पूरा मैं कहता हूँ कि AKF की मकरूज़ हैं। और हिज़ हाइनेस प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी आगा खान चहारुम की ये बिल्कुल जितनी भी हम तारीफ़ करें, उनका विज़न था कि AKRSP को गिलगित ले आए और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना के दुनिया को एक अच्छा गिलगित बल्तिस्तान इंट्रोड्यूस किया। और यहीं से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। आज ताहम ऑन ग्राउंड आप देख लें तो गिलगित बल्तिस्तान में हज़ारों NGOs हैं या इस तरह की सिविल सोसाइटीज़ हैं, मगर मुतहर्रिक बहुत कम हैं। बल्तिस्तान में कुछ लोग हैं जिन्होंने बेदार के नाम से अच्छा काम किया है, उधर की हैंडी क्राफ्ट्स को, उधर के फ्रूट्स को ड्राई करके अच्छा बना रहे हैं। इसी तरह गिलगित में कुछ हैं, गजर में कुछ हैं, हुंजा में कुछ हैं, गुजाल में हैं। तो इन लोगों ने नाम कमाया है। फिर जहाँ सस्टेनेबल टूरिज़म के लिए सिविल सोसाइटी के तौर पे देख लें तो चाहे वो अल्तित फोर्ट हो, बल्तित फोर्ट हो, खपलो फोर्ट हो, शिगर फोर्ट हो, इन सब को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ला के AKF ने अच्छा काम किया है। और जो सिविल सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई हैं उसका देखा देखी अभी गिलगित बल्तिस्तान GBRSP भी बनी है, मगर GBRSP को माजी में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने करप्शन का गढ़ बनाया था। आप किसी से भी पूछ लें, जो भी मिस एप्रोप्रिएशन करनी हो, जो भी करनी हो, गदर मचानी हो, वो GBRSP के प्लेटफॉर्म से ये करते रहे हैं। हुकूमत से मेरी ज़रूर गुजारिश होगी कि इनकी थोड़ी छानबीन कर लें तो आपको पता लग जाएगा। और फिर बड़े बड़े होटलों में सेमिनार्स रखने की बजाय इसी तरह के किसी बाग में, इसी तरह के किसी खेत में, किसी पास्चर में लोगों को जमा करके थोड़ा और इनको आगे ले जाएं तो हम इस क्लाउड बस्टिंग से बच सकते हैं। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मैं अगर अपने हलके की बात करूं तो फसो ग्लेशियर अपने ओरिजिनल पोजीशन से 400 से 500 फीट नीचे दब गया है। हमारे यहाँ यूनेस्को भी काम कर रही है, हमारे यहाँ GBDMA भी काम कर रही है, रेस्क्यू 1122 वाले भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले भी कर रहे हैं, डिवीज़न वाले भी कर रहे हैं, GB के ज़िम्मेदारान भी कर रहे हैं, मगर किसी को तौफीक नहीं हुई है कि उधर कोई चेक डैम बना के उनको सर्दियों में 30, 35, 50 फीट की हाइट की चेक डैम्स बना के इनको सर्दियों में कक्कर जमने दें और इसको बचा लें। सही। इस दफ़ा मैंने आका के लोगों को और डिज़ास्टर से रिलेटेड जो ज़िम्मेदारान थे उनको मैंने हिस्पर ग्लेशियर, फसो ग्लेशियर, खुर्दबीन ग्लेशियर, शिमशाल और इसी तरह गज़र में हमारा जो है आगे हुंदुर से आगे दरकुत में जो हमारा ग्लेशियर है और इमित में जो है आगे जाके जो वैली में, तो उस एरिया में भी इश्कोमन के एंड पे अगर हम इस तरह के चेक डैम्स बनाएं और फिर इसी तरह हम राकापोशी के बेस में फिर अगर रुपल की तरफ आ जाएं तो नंगा पर्वत के बेस में दोनों साइड पे, रुपल साइड पे भी और इधर ऊपर जो रायकोट ब्रिज से ऊपर जाके जो एरिया बनता है उस एरिया में भी ये चेक डैम्स बनाते हैं तो हम आने वाली नस्लों तक 30 से 50 साल तक हम इन ग्लेशियर्स को दोबारा से बचा सकते हैं मेरे ख्याल में। और इस पे सीरियसली काम करने की ज़रूरत है जनाब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उम्मीद है कि इलाके के लोग, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार इस गपशप से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने फीडबैक से भी हमें आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।